آپ کو بتائیں کہ عام انتخابات نتائج تبدیل کرنے کا الزام امیدواروں کی جانب سے مختلف حلقوں کے نتائج کو چیلنج کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک تقریباً 30 درخواستیں سندھ ہائی کورٹ کو موصول ہو چکی ہیں۔ ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، پیپلز پارٹی کے نبیل گبول، مرزا اختیار بیگ سمیت دیگر کی کامیابی کو چیلنج کیا گیا ہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ عام انتخابات نتائج تبدیل کرنے کا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ اس پر مزید تفصیلات جانیں گے ممتاز جمالی سے۔ جی ممتاز، بتائے گا کہ اب تک تقریباً 30 درخواستیں سندھ ہائی کورٹ کو موصول ہو چکی ہیں۔ یہ سلسلہ اور کتنا جاری رہے گا، اس پر مزید آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں جی، بالکل اب تک 30 درخواستیں جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کو موصول ہو چکی ہیں۔ عام انتخابات میں نتائج تبدیل کرنے کے الزامات ہیں، جس میں ایم کیو ایم کے فاروق ستار، ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال، ایم کیو ایم کے خواجہ اظہار سمیت دیگر کی کامیابی کو بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے نبیل گبول اور پیپلز پارٹی کے جو قومی اسمبلی کے حلقے سے کامیاب ہونے والے جو امیدوار تھے، ان کے نتائج کو بھی سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ اب تک جو ہمیں معلومات دستاویزات ملی ہیں کہ 30 سے زائد درخواستیں جو ہیں وہ دائر کی جا چکی ہیں، جس میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار، جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے کچھ امیدواروں نے جو ہے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو حلقہ پی ایس 116، پی ایس 120 اور پی ایس 101 کے نتائج کو بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ اسی طرح پی ایس 104، پی ایس 124 اور پی ایس 123 کے نتائج بھی چیلنج کیے گئے ہیں آج، جس میں پی ایس 126 اور پی ایس 98 کے نتائج بھی آج چیلنج کیے گئے ہیں۔ قومی حلقوں کی اگر بات کی جائے تو جس میں 247، 245 اور 244 جو این اے ہیں ان کے نتائج کو بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ اسی طرح 242، 238 اور 234 کے نتائج بھی چیلنج کیے گئے ہیں۔ این اے 234 کورنگی سے ایم کیو ایم کے عامر معین کی کامیابی کو بھی آج چیلنج کیا گیا ہے۔ اسی طرح این اے 239 جنوبی سے پیپلز پارٹی کے امیدوار نبیل گبول کی کامیابی کو جو ہے آزاد امیدوار یاسر بلوچ نے چیلنج کیا ہے۔ اسی طرح جو ایم کیو ایم کے امیدوار تھے 240 سے جی ممتاز جمالی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ الیکشن کے حوالے سے کچھ نشستوں پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے اور درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے ممتاز جمالی ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ممتاز، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، جس طرح آگاہ کیا ہے کہ یہ چیلنج ہونے کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے۔ اس وقت بھی اندر مختلف جو امیدوار تھے جن کو یہ اعتراض ہے کہ ان کے نتائج جو ہیں وہ تبدیل کیے گئے۔ فارم 47 میں جتنی بھی اب تک درخواستیں دائر کی جا چکی ہیں ان کا سب کا یہی اعتراض ہے کہ فارم 45 میں ان کے زیادہ ووٹ تھے، ان کو کامیاب قرار دیا گیا، لیکن جیسے ہی فارم 47 جاری کیا گیا تو ان کے نتائج جو ہیں وہ تبدیل کیے گئے ہیں۔ ابھی جو ہے جماعت اسلامی کی جانب سے بھی 4 درخواستیں جو ہیں وہ دائر ہو چکی ہیں۔ اسی طرح آزاد امیدواروں کی جانب سے بھی ان درخواستیں دائر ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ نہ صرف ایم کیو ایم بلکہ پیپلز پارٹی کے جو کچھ کامیاب امیدوار ہیں ان کے نتائج کو بھی یہاں پر چیلنج کیا گیا ہے، جس میں نبیل گبول سمیت اختیار بیگ جو ہیں، مرزا اختیار بیگ، وہ بھی قومی اسمبلی کے حلقہ سے کامیاب ہوئے تھے، ان کے نتائج کو بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ آج چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ الیکشن ٹرائبیونل کا ہے، جس پر درخواست گزار کے وکلاء کا موقف ہے کہ یہ فارم 47 کا معاملہ ہے، ابھی تک ٹرائبیونل جو ہے وہ بنا نہیں ہے، تو یہ آئینی معاملہ ہے۔ یہاں امیدواروں کو صرف یہ اعتراض ہے کہ فارم 45 میں تو ان کو کامیاب قرار دیا گیا تھا، لیکن فارم 47 میں ان کو جو ہے ناکام کرا کر دیگر 4تھے نمبر پہ یا 5ویں نمبر پہ جو امیدوار ہیں ان کے ووٹ بڑھا کر ان کو کامیاب قرار دیا گیا ہے۔ سو لہٰذا آئینی درخواست پر بھی ابھی سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ اب سے کچھ دیر بعد کرے گا۔ 2 رکنی بینچ میں یہ بھی بتائے گا ممتاز جمالی کے کون کون شامل ہے؟ دیکھیں، یہ 2 رکنی بینچ چیف جسٹس عقیل احمد کی سربراہی میں یہ 2 رکنی بینچ ہے، جہاں پر یہ آئینی درخواستیں دائر کی جا چکی ہیں۔ یہ پاکستان کا جو جس میں جبران ناصر بھی درخواست گزار کے وکلاء میں شامل ہیں، بیرسٹر صلاح الدین بھی جو ہیں درخواست گزار کے وکلاء میں شامل ہیں، دیگر جو اہم وکلاء ہیں، مائناز وکلاء ہیں اور بار کے رہنما بھی رہ چکے ہیں، وہ بھی ان درخواست گزار کے وکلاء میں شامل ہیں۔ ان کا یہی موقف ہے کہ فارم 45 میں نتائج ایک دیے گئے، جبکہ فارم 47 میں نتائج تبدیل کیے گئے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے یہ بھی استفسار کیا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ الیکشن ٹرائبیونل کا ہے، جس پر جو درخواست گزار کے وکلاء ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ ابھی تک ٹرائبیونل جو ہے وہ واضح نہیں کیا گیا، لہٰذا اس لیے چیف جسٹس جو ہے یہ آئینی درخواستوں کی سماعت کرے، جس پر درخواست گزار چیف جسٹس نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن نے کہا جو میڈیا پر نتائج چل رہے ہیں وہ فیک قرار دیے گئے تھے، جبکہ بعد میں جو
फॉर्म 47 जारी किया गया और वो नतायज जो है हतमी है, लिहाजा अभी भी इस दरख्वास्त की समाअत जो है अब से कुछ देर बाद यहाँ पर होगा। जी मुमताज़ समाली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी ने सिंध में हुकूमत साजी के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। सिंध असम्बली के 168 के अवान में मखसूस नशिस्तों समेत पीपल्स पार्टी को 110 से ज्यादा नशिस्तें मिलने का इम्कान है। MQM की नशिस्तों की तादाद 40 तक बन सकती है। सिंध में कौन बनेगा वज़ीर आला और स्पीकर का करार फाल किसका निकलेगा? आपको आगाह कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में हुकूमत साजी के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। इस पर मजीद जानेंगे आतिश जमाली से। आतिश बताएगा, हुकूमत साजी के लिए मुशावरत जारी है? जी हाँ, बिल्कुल। आज चूँकि इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है, उसमें ये सारे अहम फैसले होने हैं। वफाकी हुकूमत का फैसला भी होना है, सूबाई हुकूमतों के बारे में भी फैसले होने हैं। यहाँ से पीपल्स पार्टी के कई अहम रहनुमा इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं, जो आज शाम होने वाले इजलास में शिरकत करेंगे। जहाँ तक सूरत हाल है, सिंध असम्बली की 168 नशस्तें हैं और इन 168 नशस्तों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टॉप पर है। उसकी इस वक्त तक 84 जनरल नशस्तें हैं, लेकिन 3 ऐसे आज़ाद उम्मीदवार हैं जो पीपल्स पार्टी में आने वाले 2 से 3 दिन में शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं। इनका ताल्लुक जैकबाद और घोटकी से है। मुमताज़ जखरानी, जाम महताब डहर और नादिर अकमल लगारी, जिनसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राब्ते हैं। तो इस तरह पीपल्स पार्टी के जनरल नशस्तों पे अरकान की तादाद जो है 87 तक हो जाएगी। इसमें 20 नशस्तें पीपल्स पार्टी को ख़वातीन की मखसूस मिल सकती हैं और 6 नशस्तें जो है अक़लियतों की मखसूस मिल सकती हैं। 110 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान की तादाद जा सकती है। दूसरे नंबर पर या दूसरी बड़ी पार्टी जो है वो MQM पाकिस्तान है, जिसके पास इस वक्त 28 जनरल नशस्तें हैं, लेकिन MQM पाकिस्तान को 5 से 6 ख़वातीन की सीटें मिल सकती हैं। MQM पाकिस्तान को 2 से 3 अक़लियतों की नशस्तें मिल सकती हैं। तो इस तरह MQM पाकिस्तान की जो तादाद है वो 135 से 140 तक जा सकती है। यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार तीसरे नंबर पे हैं, 11 है उनकी तादाद, लेकिन उन्होंने अभी कहीं भी शमूलियत अख्तियार नहीं की, तो इस वजह से उनको मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकेंगी। उनके लिए 2 ही ऑप्शन हैं, या तो जमात इस्लामी में शामिल हो जाएं या फिर GDA में शामिल हो जाएं, जिनके पास 2-2 नशस्तें हैं, लेकिन इसका अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। सिंध में कायदे ऐवान के हवाले से जो नाम सामने आए हैं अब तक वज़ीर आला के लिए, मुराद अली शाह टॉप ऑफ द लिस्ट है अभी भी, जो तीसरी बार वज़ीर आला बनेंगे, लेकिन उसके साथ साथ फरियाल टालपुर का नाम भी टॉप ऑफ लिस्ट है। कहा जा रहा है कि इस बार सिंध में खातून वज़ीर आला भी मुंतखब हो सकती हैं। दीगर नामों में नासिर हुसैन शाह का नाम है, शर्जील इनाम मेमन का नाम है, सईद गनी का नाम है, सरदार शाह का नाम है। ये नाम भी गर्दिश कर रहे हैं। आगा सिराज दुरानी स्पीकर सिंध असम्बली हैं। इस बार उन्होंने अपनी क़यादत से फरमाइश की है कि उन्हें स्पीकर के बजाय वजारत दी जाए, तो इसलिए आगा सिराज दुरानी का नाम अभी भी कंसीडरेशन में है, जबकि निसार खोड़ो जो पहले भी स्पीकर रह चुके हैं, निसार खोड़ो का नाम भी स्पीकर सिंध असम्बली के लिए लिया जा रहा है। साबिका डिप्टी स्पीकर हैं रेहाना लगारी, उनका नाम भी स्पीकर सिंध असम्बली के लिया जा रहा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़ेह पोजीशन में है। निसार खोड़ो ने एक बयान में जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी को सिंध में किसी भी इत्तेहादी की ज़रूरत नहीं है, पीपल्स पार्टी को सिंध में किसी को मिलाने की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले सिर्फ अपनी हुकूमत बनाएंगे। तो सिंध में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है, अलबत्ता इसमें अहम बात वो है जो वफाक में हुकूमत साजी का अमल क्या होगा। MQM पाकिस्तान अगर वफाक में इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बनती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बनती हैं, तो फिर सिंध में MQM का पार्टनरशिप ज़रूर रहेगी, MQM का इक़्तिदार में हिस्सा रहेगा, जिसमें गवर्नरशिप का मुतालबा MQM कर सकती है, वफाकी वजारतों के साथ सूबाई वजारतों का मुतालबा भी कर सकती है अगर इत्तेहाद का हिस्सा बन जाती है। तो इसके ये सारे फैसले आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में होने हैं, जो आज शाम 7 बजे हो रहा है। यहाँ से सिंध से साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह, निसार खोड़ो,
मंजूर वसान, शाजिया मरी और दीगर ताज हैदर समेत कई रहनुमा इस इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं। जी आतिश, ये भी बताएगा कि पीटीआई की जानिब से मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार के जो इलेक्शन हुए हैं जिस नशिस्त पर, उसको चैलेंज किया गया है सिंध हाई कोर्ट में, तो क्या देख रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल में हम इनकी नशिस्तों को कंसीडर कर सकते हैं? जी, अब तक तो सिर्फ चैलेंज किया गया है, सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल नहीं, लातादाद नशस्तों को चैलेंज किया गया है। यहाँ कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों में इन नशस्तों को चैलेंज किया गया। अब इसके बारे में फैसला तो अदालतें करेंगी, लेकिन इस वक्त अहम बात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन जारी होना है। तमाम कामयाब अरकान का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जारी करना है, लेकिन इक़्तिदारी प्रोसेस शुरू हो चुका है। इक़्तिदारी और हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ का अमल शुरू हो चुका है। सियासी जमातों के राब्ते एक दूसरे से जारी हैं। ये तो सिलसिला जारी रहेगा। अलबत्ता जो जिन नशस्तों को चैलेंज किया गया, जब तक अदालतें उनके बारे में कोई फैसला नहीं करती तब तक वो कामयाब हैं, उनको कामयाब ही करार दिया जा सकेगा और वो इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा रहेंगे। जी बिल्कुल, आतिश जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हाफिज नईम रहमान का सीट छोड़ने का ऐलान, कहा कि मैं इतना ज़र्फ रखता हूं कि मैं वो सीट नहीं लूंगा। मेरे पीएस के वोट 26,000 दिखाए गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसे 30,000 दिखाए। पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार ने ज़्यादा वोट लिए हैं। आपको बताते चलें कि हाफिज नईम रहमान का सीट छोड़ने का ऐलान है, कहा कि मैं इतना ज़र्फ रखता हूं कि मैं वो सीट नहीं लूंगा। मेरे पीएस के वोट 26,000 दिखाए गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसे 30,000 दिखाए। पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार ने ज़्यादा वोट लिए हैं। आपको बताएं कि सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम के हेड मास्टर्स को ट्रेनिंग करवाने का फैसला कर लिया है। महकमा स्कूल तालीम ने कराची समेत तमाम डिवीजन के डिवीजनल डायरेक्टर्स को खत अरसाल करके असातिज़ा की ट्रेनिंग को यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी हैं। मज़ीद जानेंगे, आज़ाद नोहरियो हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा स्कूल तालीम के तमाम स्कूल में तैनात हेड मास्टर्स को बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेनिंग करवाने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने कराची समेत तमाम डिवीजन के जो डायरेक्टर्स हैं उनको खत अरसाल कर दिया है। खत कराची, हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना, शहर बेनज़ीराबाद और मिरपुरा डिवीजन के डायरेक्टर्स को अरसाल किया गया। खत में लिखा गया है कि तमाम स्कूल के जो सुपरग्रेड हेड मास्टर्स हैं, सीनियरिटी के लिहाज से उनकी पूरी तौर पर फहरिस्तें अरसाल की जाए। इनको पाइट महकमा स्कूल तालीम का इदारा है, पाइट उनके जरिए ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग जो है नवाब शाम होगी। इस हवाले से 17 ग्रेड के तमाम हेड मास्टर्स को पाबंद किया गया। 14 से 17 फरवरी तक इनको ट्रेनिंग कराई जाएगी, जिसके बाद उनको अगले ग्रेड में तरक्कियां दी जाएगी। लेकिन उससे कबल जो है इनका ट्रेनिंग करने के हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने तमाम डायरेक्टर्स को खत अरसाल कर दिया है और उनको हिदायत किया कि इनकी ट्रेनिंग को यकीनी बनाया जाए। जी बिल्कुल, आज़ाद नोहरी अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। 3 हड्डी को शाहराह पाकिस्तान से मिलाने वाली सड़क का बुरा हाल हो गया। बड़े बड़े गड्ढों के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने लगी। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे जुनेद जावेद से। देखिए जी, ये शाहराह लजबेला से टिनाटी की जानिब आ रही है और टिनाटी को शाहराह पाकिस्तान से मिला रही है। जब आप यहाँ से लेफ्ट टर्न करेंगे तो शाहराह पाकिस्तान से लियाकताबाद और आयशा मंजिल की जानिब जो है ये रोड आपको मिल जाएगा। सूरत हाल ये है कि इस वक्त भी गाड़ियाँ देखिए कितनी ख़तरनाक तरीके से जो है यहाँ पर गढ़ों से गुजरती हुई यहाँ से जा रही हैं, जबकि माजी में यहाँ पर 4 मरतबा रोड बनवाया गया है, सड़क की अस्तरकारी भी करवाई गई है और साथ ही बड़े पैमाने पर जो है यहाँ रोड कारपेटिंग भी हमने होते हुए देखी है। लेकिन सूरत हाल ये है कि बार बार जब भी बारिश होती है या सीवरेज का पानी जमा होता है तो उस वक्त ये सारी सड़क जो है वो बह जाती है और बहुत ज़्यादा नुकसानात का सामना होता है। यहाँ पर जो शहरी जो गुजरने वाले हैं वो ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर इस सड़क की अस्तरकारी कराई जाए। माजी में जब साबिक बल्दियाती दौर था और चेयरमैन का दौर हुआ करता था और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट के हुआ करते थे, उस वक्त भी ज़िला शर्की के चेयरमैन मोहित अनवर ने यहाँ पर अस्तरकारी कराई थी। बाकायदा तौर पर सारा काम जो है वो शुरू से करवाया था, लेकिन एक मरतबा फिर यहाँ पर सड़क की बुरी हाल हमें देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर जो मुसाफिर हैं जो यहाँ से गुजरते हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि अब क्योंकि बल्दियाती दौर भी चल रहा है और साथ साथ नई हुकूमत भी जो है वो तश्कील होने जा रही है, तो जो भी नुमाइंदगान मुंतखब हुए हैं वो इस सड़क के ऊपर जो है वो पहले तवज्जो दें ताकि यहाँ पर जो है वो आसानी से लोगों का गुजर मुमकिन हो सके। जी।
सफाई के नाक़िस इंतजाम के बाद शहर की छोटी बड़ी शाहराहों पर कचरे के ढेर नजर आने लगे। रेलवे कॉलोनी की सड़क पर भी कचरे के अंबार लगे हुए हैं। आपको आगाह करते चलें कि सफाई के नाक़िस इंतजाम के बायस शहर की छोटी बड़ी शाहराहों पर कचरे के ढेर नजर आने लगे हैं। रेलवे कॉलोनी की सड़क पर भी कचरे के अंबार लगे हैं। इंतजामिया होश के नाखुन नहीं ले रही, खाबे खरगोश के मसले लेने में मसरूफ है। सफाई के नाक़िस इंतजाम के बायस शहर की छोटी बड़ी शाहराहों पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ आपको आगाह करें कि शहरियों की हुकूमत से बुनियादी सहूलियात की फराहमी की उम्मीदें दम तोड़ने लगी हैं। कोरंगी छत्तीसवीं में अवाम ने पानी के हुसूल के लिए मोटरसाइकिल और बैटरी का सहारा ले लिया। मसीह जानेंगे एहसन अब्बासी से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं लांडी जबानाबाद 36B के इलाके में, जहां पे वोटर्स ने वोट तो डाल दिए लेकिन उसके बावजूद भी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। पानी को जो है वो घर तक पहुंचाने के लिए वाटर बोर्ड ने कनेक्शन फराम नहीं किए, तो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो पानी हासिल करना शुरू किया है। मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइए कि क्या तरीक़ेकार है, किस तरह पानी लेके जाते हैं घर? बस लेके आते हैं, मोटर लेके आते हैं, बैटरी लेके आते हैं, फिर यहाँ से चलाते हैं और घर पे भी मोटर बैटरी लगाते हैं। दो मोटर लगती हैं और फिर वहाँ से लेके आया, फिर पूरे दिन इंतज़ार करना पड़ता है। पहले तो 9 साढ़े 9 बजे 10 पानी आ जाता था, अब तो तकरीबन 11 12 और कभी आता भी नहीं है। ऐसा भी होता है कि लेके आके मोटर लेके आए, ट्राली लेके आके वापस ले गए। ठीक है। अच्छा भाई, मुझे आप बताइएगा ये कब से ये इस तरीके से पानी जो है वो हासिल कर रहे हैं आप लोग? भाई ये पिछले 3 साल से मुस्तकिल आवाम जो है ना प्लम्बर बन गई है, मजदूर भी कर रहे हैं। आप देखें ये ट्राली, बैटरी, पानी की मोटर, ये 50-60 हज़ार रुपए के सामान है जो अपनी लोगों ने मेहनत से ख़रीद के यहाँ लगाते हैं। इधर सारा दिन पानी के इंतज़ार में बैठते हैं, फिर भी पानी नहीं आता। कभी आ जाता है तो लोग खुश हो जाते हैं, अपने घरों पे इस तरह भर लेते हैं। लेकिन 3 साल से पब्लिक ख्वार है बुरी तरह। वोट भी हमने इधर MQM पाकिस्तान को दिए ताकि कुछ इलाके में काम हो, कोई बेहतरी आए पानी में, बिजली में। आए दिन इस रोड के ऊपर डकैतियाँ, वारदातें, प्लस पानी नहीं है। बुनियादी ज़रूरतें हमारे यहाँ लोगों को पास नहीं है, जो अपनी मदद के तहत डेली खुद ही गड्ढा लगाते हैं, खुद ही मिट्टी को सही करते हैं। पानी की लाइनें आपने देखी हैं किस तरह इधर पानी लोग लेते हैं, फिर उसके बावजूद अगर पानी नहीं मिले तो फिर अफसोस है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वोटर्स ने तो अपना हक के राय दे इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो बुनियादी सहूलियात के मुंतज़िर हैं। किसी ने जमात इस्लामी को वोट डाला तो किसी ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को वोट डाला। मुख्तलिफ सियासी जमातों को वोट भी मिले, लेकिन उसके बावजूद भी मकीन जो है वो भी आज भी जो है वो बुनियादी ज़रूरियात के मुंतज़िर हैं। जी, लायंस एरिया में सीवरेज निज़ाम दरहम बरहम हो गया। इंतजामिया के नाहली ने पूरे इलाके को गंदे पानी से भर दिया। इलाके में मस्जिद के आगे खड़ा पानी नमाज़ों के लिए तकलीफ का बाइस बना हुआ है। मसीह जानेंगे फरहान खान से। जी बिल्कुल, शहर कायद में जो है वो बोसीदा सीवरेज का निज़ाम जो है वो शहरियों के लिए जो है वो अजियत का बाइस बनता चला जा रहा है। इस वक्त जो है वो मैं लायंस एरिया के इलाके के अंदर मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन शाजिब अगर आपको यहाँ की सूरत हाल दिखाएं तो यहाँ पे जो है वो गलियों के अंदर जो है वो सीवरेज का पानी जो है वो जमा है, जबकि जो है वो सड़कों के ऊपर भी जो है सीवरेज का पानी खड़ा है। बिल्कुल जो है वो मस्जिद का गेट है, मेन गेट, इसके सामने भी जो है वो सीवरेज का पानी खड़ा है, जबकि इसी के साथ साथ जो है वो इमाम बारगाह भी है यहाँ पे, वहाँ पर भी जो है वो सीवरेज का पानी खड़ा है। ये इंतजामिया की नाअहली के बाई जो है वो जगह जगह जो है सीवरेज का पानी जो है वो जमा हुआ है। कुछ इलाका मकीन हमारे हमरा मौजूद है, इनसे भी तफसीलात लेते हैं। मुझे बताइए कब से सीवरेज का पानी यहाँ पे जमा है? तकरीबन ये 4-5 साल से यही हो गया है। हम खुलवा के थक गए हैं, वो भी खोलने के लिए महीने में आते हैं। हालांकि मदरसे मस्जिद का मेन गेट है, आप देख सकते हैं कि इधर लोग नमाजी आते हैं, आने वाले परेशान है, ना आने का रास्ता है ना जाने का, ना सफाई का निज़ाम है। ये गटर तो मामूल हो चुका है, हम इसकी कंप्लेन कर के थक गए, कोई हमारी सुनवाई नहीं है। 4-5 साल में ऐसा हो गया जैसे शहर लावारिस हो गया, ना सफाई होती, ना ये सीवरेज का निज़ाम सही हो रहा, ना तो हमारे इलाके में पानी की मीठे की सहूलत। दूसरा 24 घंटे के अंदर गैस नहीं आ रही। आप गैस वाले की दुकान पे जाके लगाएं तो रश लगा हुआ है गैस डलवाने के लिए। अब बंदा कमाए, घर का पूरा करे, इन मामलातों को करे, ये तो रोड का हाल है। गलियों में आप जाएंगे इससे ज़्यादा बुरा हाल हुआ है। जी बिल्कुल, ये तो जो है वो मेन रोड का हाल है। अगर आप गलियों के अंदर जाएं तो इससे ज़्यादा जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल है। इस वक्त जो है कुछ और इलाका मकीन में हमारे अपना मौजूद नहीं तफसीलात देते हैं। मुझे बताइएगा कि क्या कहेंगे इंतज़ामिया को, जो है इंतज़ामिया की गफलत के बाइस जो है वो जगह जगह पानी। आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि कम से कम ये 4-5 साल से यही इशू हमारे लिए बना हुआ है। ये मेन रोड है, मेन रास्ता, आप गाड़ियाँ चलती हुई देख रहे हैं, आपके सामने चल रही हैं। ये बच्चे स्कूल जाते हैं यहाँ सुबह का टाइम, और ये हालत तकरीबन 5 साल से। इसे जब भी हमने ठीक कराया है, अपनी मदद आपके तहत कराया, बाकी गवर्नमेंट ने हमारे साथ इस मामले में कोई ताउन नहीं किया।
हमारे यहाँ ऐसे ही हम लोग करते हैं ये। जी बिल्कुल, इलाका मकीन जो है वो खासा गम गुस्से का भी इजहार करते हैं। इनका ये कहना है कि गुज़िश्ता 4-5 साल जो है वो सीवरेज का निज़ाम जो है वो इलाके का जो है वो तबाह हाल है। हमेशा जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो यहाँ पे सफाई कराते हैं और इंतज़ामिया को जो है मुतअद्दिद बार जो है वो शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो इनका जो है सीवरेज का मसला जो है वो हल नहीं होता है। जी एक बार फिर आपको बताएं कि सफाई के नाक़िस इंतजाम के बाद शहर की छोटी बड़ी शाहराहों पर कचरे के ढेर नजर आने लगे। रेलवे कॉलोनी की सड़क पर भी कचरे के अंबार लगे हैं। अपडेट करेंगी आयमा खान। जी बिल्कुल, देखें कराची को रोशनियों का शहर नहीं, कचरा सिटी कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। शहर की छोटी बड़ी सड़कें जो है वो कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रेलवे कॉलोनी का इलाका है। यहाँ मेरे कैमरामैन दानियाल अगर आपको दिखा सकें तो सड़क के बीचों बीच जो है वो कचरे का अंबार लगे हुए हैं। सड़क के बीचों बीच जो है वो कचरा कुंडी बनी हुई है। छोटे छोटे बच्चे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे खेल रहे हैं और ये कचरे के बाहर जो है वो इलाके में ताफुन की सूरत हाल भी पैदा हो रही है और बीमारियाँ भी जो है वो इस इलाके में फूट रही। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे मजीद तफसीलात लेते हैं। इस 10 पूरा साल कॉलोनी होते हो गए हैं और तले जो रेलवे दिया लैडर ना, ये देखो पहाड़ी, ये सारा पहाड़ी मतलब गांधा साहब ये और मस्जिद दे कोल और ऐ जगह जो आदमी दे ना करते हैं बेवजूब आदमी जुमे का हाली जो लो सा नी जो लगना क्या हो गए पानी खुलता है वो तो नीचे तक पहुंचते हैं। इसके दरिया बड़े दे होते। आप बताइएगा कचरा होने के बायस आप लोगों को कितनी परेशानी हो? देखिए मसला ये इस इलाके के अंदर जो है कचरा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है और ये कचरा महीना 6-6 महीने कचरा नहीं उठता है और इस कचरे के नीचे पानी की लेन जा रही है। होता क्या है वो जब लेन लीक हो जाती है, लेन लीक होने के बाद क्या होता है जब वाल खोला जाता है तो ये कचरे का जो पानी है, जो पानी जमा होता है वो पानी वो लोगों के घरों में वो पानी जाता है। देखिए हम लोग इलाके वाले हम लोग की इलाके वाले जब वोट देते हैं तो ये असम्बली हाल में जाते हैं, असम्बली हाल में जाते हैं तो कम से कम आवाम के लिए आवाज़ उठाएं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ रेलवे कॉलोनी के इलाका मकीन जो है वो मौजूद थे। इनका ये कहना है कि यहाँ पे कचरा कुंडी होने के बाद जो है वो खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है यहाँ के इलाका मकीनों को। साथ ही साथ इनका ये भी मुतालबा है कि जल्द अज जल्द जो है वो इलाके में सफाई का काम करवाया जाए ताकि जो है वो इलाके में ताफुन और जो बीमारी की सूरत हाल है वो पैदा ना हो। जी आगा खान सोइम रोड पर नाले की तामीर साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल न हो सकी। गार्डन लसबेला से एमजिना रोड आमदोरफ्त मुहाल बन गई। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे रिजवान अहमद से। बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची में एग्रीकल्चर के इंजीनियर को सिविल इंजीनियर बनाया हुआ है जिसका खमियाजा शहरियों को भुगतना पड़ रहा है। आगा खान सोयम रोड से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ जहाँ पे एक नाले की कलवट जो है वो तकरीबन 1 साल कबल जो है वो तामीर का उसका आगाज़ हुआ था। मेरे कैमरामैन इमरान अहमद खान आपको दिखाएंगे कि 1 साल गुजरने के बावजूद इस कलवट की तामीर का काम मुकम्मल नहीं हो सका है। नाले के एक तरफ यानी सड़क के दो तरफा ये सड़क है, इसके एक तरफ जो है वो काम मुकम्मल किया गया लेकिन बारिशों में वो काम भी नाकिस साबित हुआ और बैठ गई वो सड़क वहाँ से। उसकी मरम्मत के काम के साथ साथ दूसरे ट्रैक को भी जो है वो खोद दिया गया है। इस तरह ये कहा जा सकता है कि इंतहाई मसरूफ़ तरीन शाहराहों में शुमार होने वाला ये रोड आवाम के लिए दर्द सर बना हुआ है। ख़ास तौर पे सुबह और शाम के औकात में यहाँ पे बदतरीन ट्रैफिक जैम देखने को मिलता है। मुख्तलिफ हॉस्पिटल इस रोड पर वाक़े हैं, स्कूल हैं, इसके साथ साथ मुख्तलिफ दफातर और आमदोरफ्त शहरियों की आमदोरफ्त के लिए भी ये रोड इंतहाई अहमियत का हामिल है। शहरी एक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बड़े साहब बताइएगा इस रोड की अहमियत क्या है और इस काम की वजह से परेशानी क्या क्या हो रही है? काम की वजह से तो काफ़ी दुश्वारी हो रही है इसलिए कि मसरूफ़ तरीन शहरा है, अस्पतालें वगैरह है, सदर है, लोगों की आमदोरफ्त ज़्यादा होती है इस रोड पर। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये काम जो है वो इतने अरसे से आप देख रहे हैं कि हो रहा है, तो क्या वजह है, ये मुकम्मल क्यों नहीं हो पा रहा? हाँ, काम थोड़ा उस तरफ तो ज़्यादा सुसरवी के शिकार था, तो इस तरफ तो इनको टारगेट था 3 महीने का दिया था, तो कह रहे थे इस तरफ ये जल्दी कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये बारिश होगी उस दिन, बारिश की वजह से जो है ना उस तरफ वाला रोड जो बराबर में जा रहा है वो थोड़ा रोड नीचे बह गया था, जिसकी वजह से अभी जो है ना 8-10 दिन यही उनका मसला लगा हुआ है, वो पानी वगैरह कचरा वगैरह निकाल रहे हैं। बिल्कुल, एक तवील वक्त गुजर चुका है लेकिन काम जो है वो मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा है और जो एक ट्रैक का काम मुकम्मल किया गया था वो भी बारिशों की नज़र हो गया। तो इस तरह ये कहा जा सकता है कि फौरी तौर पर इसकी तहकीकात और अमले की तब्दीली की ज़रूरत है और फौरी तौर पर इस मसले को हल करने की ज़रूरत है ताकि शहरियों की आमदोरफ्त को जो है वो सहल बनाया जा सके। जी, जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की में 16 साल की सूनियर से मुबैना ज़्यादती जहर खुराने से कत्ल केस की समाअत हुई। तफ्तीशी अफसर ने मुकदमे का अबूरी चालान अदालत में जमा करा दिया। मज़ीद जानेंगे जवाद आसिफ से।
جی بالکل، دیکھیں گھریلو ملازمہ سونیا کو مبینہ زیادتی اور زہر خورانی سے قتل کیس کا معاملہ ہے۔ مقدمے کا عبوری چالان تفتیشی افسر نے جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی کی عدالت میں جمع کروا دیا ہے۔ تفتیشی افسر نے چالان میں چاروں ملزمان کو کلین چٹ دے دی ہے۔ چالان میں تفتیشی افسر نے بتایا ہے کہ ملزمان میں چونکہ انیب، علی، حاشر، حماد اور عمران شامل ہیں، چالان کے مطابق ملزمان کے خلاف کوئی بھی خاطر خواہ اور ٹھوس ثبوت نہیں ملا ہے، جبکہ میڈیکل رپورٹس اور ڈی این اے میں بھی جو ہے وہ ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے۔ جبکہ ایک ملزم عمران کے حوالے سے چالان میں لکھا گیا ہے کہ دوران تفتیش سی ڈی آر کروانے پر عمران کا سونیا سے رابطے کا انکشاف ہوا۔ ملزم جو ہے وہ مقتولہ سے گزشتہ 6 مہینے سے رابطہ میں تھا، تاہم عمران کے خلاف بھی کوئی ایسا ثبوت نہیں مل سکا ہے۔ چالان میں یہ بھی کہا گیا کہ فورنزک رپورٹ کے مطابق مقتولہ کے اعضاء میں کوئی بھی زہریلی دوا یا نشے کا جو ہے وہ اثر نہیں پایا گیا ہے۔ چالان میں بتایا گیا ہے کہ اب جو ہے وہ فائنل پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے پر مقدمے کا حتمی چالان جو ہے وہ عدالت میں جمع کروایا جائے گا۔ اس لیے عدالت نے اب تفتیشی افسر کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ مقدمے مزید تفتیش کر کے مقدمے کا حتمی چالان عدالت میں جمع کروائیں، کیونکہ عبوری چالان میں پولیس کو کوئی بھی ثبوت چاروں ملزمان کے خلاف نہیں مل سکا ہے۔ یہ جو چاروں ملزمان ہیں یہ ضمانت پر رہا ہے۔ واقعہ اکتوبر کو پیش آیا تھا جب گھریلو ملازمہ سونیا کو تشویشناک حالت میں جو ہے وہ بنگلے کے مالکن نے اس کے گھر پر چھوڑا تھا، جہاں اسے جناح اسپتال لے جایا گیا لیکن وہ دم توڑ گئی تھی۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ عزیز بھٹی میں مقتولہ کے والد کوڑو خان کی مدیت میں درج کیا گیا۔ جی کاروباری دنیا سے خبر یہ ہے کہ جنوری 2023 کے مقابلے جنوری 2024 میں ترسیلات زر میں 26.20% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے نمائندے ارشف خان سے۔ جی ارشف، بتائیے گا۔ جی دیکھیں گا، ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر ہے کہ جنوری 23 کے مقابلے جنوری 24 میں ترسیلات زر 26% اضافے سے 2 ارب 40 کروڑ ڈالر کی سطح پر پہنچ گئی ہیں، اور جو ماہرین کا کہنا ہے کہ نگراں حکومت کا ڈالر کے اسمگلر سعودی حوالے کے کاروبار پر کریک ڈاؤن کی وجہ سے انٹر بینک اوپن مارکیٹ کا بڑا فرق ختم ہوا ہے، جس کی وجہ سے ترسیلاتی زر میں بہتری دیکھی گئی ہے، اور رواں مالی سال 7 ماہ میں 16 ارب 31 کروڑ ڈالر جو ہے گزشتہ مالی سال کے مقابلے رواں مالی سال 15 ارب 83 کروڑ ڈالر موصول ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ جو ہے سعودی عرب سے 58 کروڑ 73 لاکھ ڈالر موصول ہوئے ہیں۔ جی ارشف خان، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ الیکشن کے بعد بھی سرمایہ کاروں میں بے یقینی برقرار۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز مندی کا رجحان۔ ماہرین کا کہنا ہے جب تک حکومت سازی عمل مکمل نہیں ہوتا مارکیٹ میں سرمایہ کار محتاط ہی نظر آئیں گے۔ مزید جانیں گے ایاز رانا سے۔ جی بالکل، جیسے آج کاروباری ہفتے کا پہلا روز ہے، لیکن جو انسرٹنیٹی ہم نے دیکھی تھی مارکیٹ جس دن جمعے کو کلوز ہوئی تھی تو 1200 سے زائد پوائنٹس جو ہے وہ نیگیٹو تھے۔ اب تک جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت 1300 سے زائد پوائنٹس جو ہے وہ 100 انڈیکس پہ مائنس ہو چکے ہیں۔ تو جاننے کے لیے شہریار بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہریار سے جانتے ہیں، دیکھیے ابھی تک جب سے الیکشن کے ریزلٹس آئے تو کلیئر طور پہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک جو کولیشن گورنمنٹ بننے جا رہی ہے۔ ایک کولیشن گورنمنٹ کبھی بھی غیر مقبول فیصلے اور مشکل فیصلے نہیں کر سکتی، کیونکہ ہمیں سیاسی استحکام چاہیے، اور اس طرح سے ہم نے وٹنس کیا تھا لاسٹ ٹائم جیسا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی تو مرکز میں ایک پارٹی کی حکومت ہوتی تھی، صوبے میں دوسری پارٹی کی حکومت ہوتی تھی، تو اس کے بعد کانفلکٹ بہت زیادہ ہوتے تھے۔ ہمیں بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، خاص طور پہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے مذاکرات کرنے، لیکن جب بھی پینک سیلنگ ہوتی ہے مارکیٹ میں تو اکراس دا بورڈ سیلنگ آتی ہے، باوجود اس کے کہ اسٹاکس اچھے بھی ہوں، لیکن چونکہ جب پینکس ہوتی ہے انویسٹرز پھر شیئر بیچنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہی وجہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں اکراس دا بورڈ مارکیٹ میں سیلنگ آیا، وہ بینکنگ کے اسٹاکس ہوں، باوجود اس کے کہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں، ریزلٹس بہت اچھے آ رہے ہیں، پاور سیکٹر سے بہت اچھے ڈیویڈنڈس آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم پاور سیکٹر میں بھی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان کے مذاکرات تھے بڑی حد تک اس کا دار و مدار ایک ڈیویڈنڈ پلگ بیک ان اسکیم تھی جس میں ہیوی ڈیویڈنڈ دینے تھے آئل کمپنیز کے، وہ پروگرام بھی ابھی تک اپروو نہیں ہوا ہے۔ اس کے بارے میں بھی کچھ کوشچنز آ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے آیا اس کو ریجیکٹ کر دیا یا پھر اگلی حکومت کے لیے چھوڑ دیا، تو یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آئل سیکٹر کے اندر بہت زیادہ سیلنگ دیکھنے میں آ رہی ہے اور لاس لگے ہوئے ہیں۔ شہریار نے جیسے بتایا کہ ایک تو جو انسرٹنیٹی ہے کیونکہ ایک کولیشن گورنمنٹ بننے جا رہی ہے جو کہ ایک مقبول جو ہے فیصلے نہیں کر سکتے، سخت فیصلے اس وقت اکنامی کے لیے لینے ہوں گے آنے والی حکومت کو، وہ دیکھتے ہوئے، اور ساتھ ساتھ لوگ جو ہے وہ ایک دم جو سیلنگ آ رہی ہے وہ بینکنگ سیکٹر ہے، اس کے ساتھ آئل اینڈ گیس کا سیکٹر ہے، اس کے اندر سیلنگ جو ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر ایک جو گراوٹ کا گراف ہے وہ بہت تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ جی صنعت کاروں نے بروقت الیکشن کو ملکی معیشت کے لیے مثبت قرار دیا۔ صدر کاتی جوہر قندھاری نے نومنتخب حکومت سے مساق معیشت کی پالیسی دینے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید جانتے ہیں ارشف خان سے۔
देखा जाए मुल्क में आम इंतखाबात मुकम्मल हो गया है और जो अब हुकूमत बनाने का सिलसिला जारी है। जो भी हुकूमत आएगी बिजनेस कम्युनिटी यही कह रही है जो वादे पूरे किए जाएं, जो किए गए हैं। यहाँ पे कोरंगी एसोसिएशन और ट्रेड इंडस्ट्री के जो सदर हैं जौहर कंधारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो मुबारकबाद, बहुत अच्छे पुरअमन इंतखाबात हो गए, अब गवर्नमेंट बनने जा रही है। आप क्या मुतालबा करेंगे जो वादे किए हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक इस मुल्क के अंदर जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी टाइम से थी, जिसकी वजह से खासतौर पे आपकी मईशत तबाह बर्बाद हो गई थी और कोई चीज़ भी कंट्रोल में नहीं थी। जितने इकोनॉमिक के बैरोमीटर थे वो सारे अलार्मिंग हो गए थे। खुदा का शुक्र है एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ और अब जो भी हुकूमत बनने जा रही है खुदा करके एक अच्छी मजबूत हुकूमत बने। और मेरी ये रिक्वेस्ट होगी आने वाली हुकूमत को कि अब क्योंकि अब जो हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को कुछ टाइम के लिए भूल जाएं, वो अमल मुकम्मल हो गया, अब चार्टर ऑफ इकोनॉमिक्स की तरफ आएँ और इस पर काम करें और वॉर फुटिंग लेवल के ऊपर मैं ख्याल तक 100 दिन का टारगेट लेके 3 महीने का टारगेट लेके सब छोड़ के इस पे बैठ जाएं, तमाम लोग मिलके इस पे बैठ जाएं, क्योंकि इसको अगर नहीं संभाला तो अब चीज़ें बहुत खतरनाक हद तक निकल चुकी हैं। हमें बुनियादी तौर पे इसमें सबसे पहले जो है ना अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आना होगा, इसका जाल बिछाना होगा, इसको फ़रोग देना होगा। और इसके साथ साथ जो एनर्जी आउटरीच का मसला है, ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, और जो है वो इतने हाई पैसों में है कि हम अपने नेबर कंट्रीज से इस रीजन में कम्पीट नहीं कर सकते। यही वजह है कि हम 30% ज़्यादा कॉस्ट ऑफ डूइंग देते हैं। जहाँ दुनिया का कारोबार एक मोबाइल फ़ोन पे होता है, हम इसको कवर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बुनियादी तौर पे जंगी बुनियादों के ऊपर अपना जो है ये एनर्जी आउटेज के मसले को हल करना पड़ेगा। बैंक का मार्कअप सर कहीं भी इस रेट पे सर्वाइव नहीं कर सकता। तो 22-23% मार्कअप और उस पर 4-5% इंश्योरेंस और दूसरे खर्चे लगा के अगर आप 28-30% मार्कअप देंगे तो मुझे बताएं कि कौन सी इंडस्ट्री चल सकती है? नहीं चलेगी। जी, जैसे कि आपने सुना अहम तजावीज़ दी हैं, कहा है कि जो भी हुकूमत सब मिलकर जब आते हैं तो बैठ कर मिसाक जमहूरियत को एक तरफ रख के मिसाक मईशत पे काम करें और साथ ही जो इंडस्ट्री के मसाइल हैं उसको हल किया जाए ताकि इंडस्ट्री चले, रोजगार के मौके पैदा हो सकें। और नाज़रीन, कराची यूनिवर्सिटी के कदीम दरख्त तवज्जो का मरकज़ तपती धूप में ये दरख्त तलबा को साया फराहम करते हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची में वैसे तो सब्ज़ा बहुत कम है, लेकिन एक मकाम ऐसा भी है जहां कराची में माहौलियाती निज़ाम में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए अहमियत का हामिल है। आइए आपको दिखाते हैं। ये हैं सदियों पुराने दरख्त जो मुल्क की सबसे बड़ी जामिया में आज भी शान से खड़े हैं। जामिया कराची के शोबा नबातियात के बाहर मौजूद ये दरख्त 100-200 नहीं बल्कि 250 साल कदीम हैं, जो आज भी तपती धूप में तुलबा को ठंडा साया फराहम करते हैं। वह नबातियात के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम सिद्दीकी ने बताया कि ये माहौल दोस्त दरख्त आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदा मंद होते हैं, इसलिए दरख्त लगाएं तो उनकी देखभाल लाजमी करें। कदीम दरख्त मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट है माहौल को क्लीन करने के लिए, क्योंकि इस दरख्त को बढ़ने में जितना टाइम लगा है तो उस टाइम पे अगर हमको नए प्लांट्स लगाएंगे तो उतना ही टाइम वो लेंगे। कदीम दरख्त ये आपको नज़र आ रहा है, इसके जो कैनोपी कवर है काफ़ी ह्यूज कैनोपी कवर है, मोर नंबर ऑफ लीव्स हैं इसके अंदर, देयर इज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन ये खारिज करते हैं जो माहौल दोस्त है। माहिरीन ने इन कदीम दरख्तों को असासा करार दिया है और इनकी देखभाल के लिए कानून साजी की तजवीज़ दी है। माहिरीन ये मुतालबा करते हैं कि सिर्फ चंद एक नहीं बल्कि कराची में मौजूद तमाम कदीम दरख्तों की अहमियत को और लोगों की दिलचस्पी के लिए उन्हें नेशनल हेरिटेज का दर्जा दिया जाए। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ सबा परवेज़, सिटी 21।